Hello friends, good morning. How are you all? In last lecture we have discussed the continuity of a function at a given point. Today we will discuss the continuity of a function in open interval and in closed interval. Let's start. Continuity in open interval. A function fx defined in open interval ab is said to be continuous in open interval AB if it is continuous at each point of the open interval AB. Each point of the open interval AB means if this is the open interval AB, this is the open interval AB, this line represents the open interval AB, then it is continuous at each and every point of this open interval. Not x is equal to a and not x is equal to b. Remember it. For example, let C belongs to open interval AB. For all the meaning, C represent each and every point of the open interval AB. C represent each and every point of the open interval AB. Then fx is said to be continuous in open interval AB if fc is equal to left hand limit. This is left hand limit. In last lecture we have discussed left hand limit of the function at x is equal to c is equal to right hand limit of the function at x is equal to c. Then function is said to be continuous in open interval at x is equal to c. C represent the all the points of the open interval. ये कैसे क्या a is less than c is less than b. जो आपके c की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल a और b के बीच में ही लाई करेगी. Now we will discuss the continuity in closed interval ab. Now we will discuss the continuity in closed interval ab. A function fx is said to be continuous in closed interval ab if it is continuous. ध्यान रखें तीन बातों का ध्यान रखना विशेष रूप से. इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ab जैसे हमने पहले चेक किया, एंड इट इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a. व्हाट इज x is equal to a? x is equal to a is the lower limit of the closed interval, right? And it is continuous at x is equal to b. It is continuous at x is equal to b. b is the upper limit of the closed interval ab. ये इसकी upper limit है. जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं closed interval को, this is x is equal to a and this is x is equal to b. x is equal to b जब हम closed interval की बात करते हैं, it means क्या होगा भाई? These two points are also included. Then कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे? इसके लिए ध्यान रखें ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी तो हम जो पहला पार्ट है हमारा ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं ओपन इंटरवल में. ध्यान रखिए जब x इक्वल टू a पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है इन पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? fx if fx is defined in closed interval ab then fx is said to be continuous at x is equal to a. ध्यान रखें x is equal to a पर कंटिन्यूटी क्या चेक करेंगे? If fa is equal to only right hand limit. ध्यान रखें only right hand limit of the function, then fx is said to be continuous, and fx is said to be continuous at x is equal to b if fb is equal to, fb means value of the function at x is equal to b is equal to only left hand limit. यहाँ पर चेक करेंगे right hand limit और यहाँ पर चेक करेंगे left hand limit. ये इस पर हमने राइट हैंड लिमिट क्यों चेक की, लेफ्ट को नहीं चेक करते. हमने तो बताया था कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन fa मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. यहां पर हम चेक कर रहे हैं केवल राइट हैंड लिमिट. क्यों कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट? इसलिए क्या चेक करते हैं जब हम राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx की बात करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f a plus x
comes in the closed interval. और जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x tends to a negative fx is equal to limit x tends to 0 f a minus h. देखना एक बार, a minus h is less than a minus h is less than a, it means, and यहाँ क्या रहेगा, फंक्शन इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, इट मींस जो x की वैल्यू है क्या हो सकती है, दैट इज नॉट लेस देन, दैट मे बी इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू a के इक्वल हो सकती है, x इज इक्वल टू b के इक्वल हो सकती है. फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन दिस रीजन, राइट, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन दिस रीजन आल्सो. जब हम a माइनस x की बात करेंगे तो फंक्शन हमारा किस कैटेगरी में आएगा, लेस देन a में, इट मींस we will check only the right limit of the function and value of the function, not the left hand limit, not the left hand limit. Similarly, at x is equal to b, at x is equal to b में क्या करेंगे, function is said to be continuous at fx is said to be continuous at x is equal to b if fb is equal to ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट कौन चेक करें, यहाँ पर चेक करेंगे, तो b माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, इन क्लोज इंटरवल उसके अंदर आएगा, और जब हम b प्लस h करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी आउटसाइड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. सो fx is said to be continuous at x is equal to b if fb is equal to limit x tends to b negative fx, that is left hand limit. Clear है बेटा? Now we have to discuss some rules और some theorems कह सकते हैं. theorem से पहले भी एक दो चीजें हैं हमारी जो हम डिस्कस करेंगे. एक आ जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन. अभी हमने कंटिन्यूटी चेक की है ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में. किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कब कह सकते हैं भाई, कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, देखना, अगर मैं कोई रफली सा ग्राफ ड्रॉ करूं, कंटिन्यूटी मींस अ फंक्शन कर्व ऑफ द फंक्शन इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन, है ना, ये हम कर्व ड्रॉ करें. फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये है हमारा y इक्वल टू fx का फंक्शन. अब हम करें कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसका मीनिंग है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है कब, जब वो अपने डोमेन के सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है. तो डेफिनेशन में लिख दीजिएगा, a function fx is said to be continuous function if it is continuous at each point of its domain. क्लियर है? अगर वो अपने डोमेन के, डोमेन क्या है इस फंक्शन का, डोमेन ये है भाई, यहाँ से और यहाँ तक हमने इसे आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है. तो अगर वो डोमेन के हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी, इन पॉइंट पर भी, इन पॉइंट पर भी, सभी पॉइंट्स पर अगर कंटिन्यूअस है, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. अगर ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल के डोमेन में कंटिन्यूअस हो, क्लोज है तो क्लोज में. Thus fx is said to be continuous function if it is continuous at each point of its domain. राइट? एक बात करते हैं, अगर किसी फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है तब क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं a function fx is said to be continuous everywhere
फंक्शन भी रियल फंक्शन होना चाहिए, ध्यान रखें, फंक्शन शुड बी रियल फंक्शन। एवरीवेयर इफ इट इज continuous at each, क्या कह सकते हैं, for each real number, at each real number a function is said to be continuous everywhere if it is continuous at each of the real number, that's all। ये तो हमारी होगी डेफिनेशंस जो कंटिन्यूटी है। Now we will discuss some theorems on continuity। theorems कैसे होंगे बेटा, हमारे पास में कुछ 11th क्लास में अपने फंक्शंस के टाइप पढ़े थे। पहला टाइप आपका जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 1 विदाउट प्रूफ ही एक्सेप्ट कर लेना। मैं चाहूँगा तो एक दो प्रूफ इसका करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जैसे मॉडुलस थ्योरम्स है और आपकी कांस्टेंट फंक्शंस हैं, उनके मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ साथ साथ थ्योरम को ही। थ्योरम नंबर 1 रिजल्ट्स जो भी हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पहली बात, आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो आपका लीनियर फंक्शन हो सकता है, कोई कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, चाहे आपका कितनी भी डिग्री का कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जब पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, चाहे आप कोई भी फंक्शन की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए सबके लिए डिफाइंड होता है, सबके लिए कंटिन्यूअस होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन का ग्राफ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। या कह सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट मींस इट इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, राइट। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है अ कांस्टेंट फंक्शन is a continuous function। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूं, fx इज इक्वल टू 5। ये क्या है, आप x की वैल्यू कुछ भी ले, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस and this is origin। what is fx is equal to 5, या कह सकते हैं y is equal to fx is equal to 5। where x is equal to 0 तब भी y की वैल्यू 5, x is equal to 1 तब भी y की वैल्यू 5, x is equal to 2 तब भी वैल्यू 5, 3 तब भी 5, -1 तब भी 5, -2 तब भी 5। it means this is straight line। या fx is equal to -4 तब भी आप कह सकते हैं -4, x की वैल्यू 0 तब भी -4, x की वैल्यू 1 तब भी -4, x की वैल्यू 2 तब भी -4। ये इस तरह से इट मींस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूफ क्या करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिल जाएगा और एक आध बार बोर्ड में आया भी क्वेश्चन है बहुत पहले, तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रूफ, लेट fx इज इक्वल टू k। भाई आपने मैथमेटिकली तो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, जो आपका ग्राफिकल है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस फंक्शन इज fx इज इक्वल टू k। तो
वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसके लिए हमने आपको बता रखा है कि फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन और सेट ऑफ रियल नंबर, देखना सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। नाउ हाउ कैन वी चेक, लेट A belongs to R, A belongs to R मींस क्या हो सकता है, ये जो आपका A है ये इन सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया ना बेटा, ये जो A है ये सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा था कि ये जो रियल नंबर होता है क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल, ये भी कह सकते हैं। अब हम इस A पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी, इस पॉइंट A पर चेक करेंगे। कैसे करेंगे, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के आपके 3 स्टेप्स हैं। पहले 3 स्टेप में कौन कौन से हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, f a, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। आप x की वैल्यू कुछ भी रखें क्या आएगा, y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, k। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to a negative fx is equal to limit x tends to 0 f a minus h, f a minus h मैं फिर कह रहा हूँ फंक्शन इज कांस्टेंट। आप x को कहीं भी वेरिएट करें, कहीं भी y की वैल्यू क्या है, k है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x tends to 0 k, दिस इज k, राइट। Now we will discuss about right hand limit. Limit x tends to a positive fx. Limit x tends to 0 f a plus h. Limit h tends to 0. भाई a plus h है तो क्या है, ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a है तो तब भी x की वैल्यू कुछ भी रखें, y की वैल्यू क्या है, k है, दिस इज k। Since fa is equal to limit x tends to a negative fx is equal to limit x tends to a positive fx, there is equal to k, therefore fx is equal to k is a continuous function। hence ये कैसा फंक्शन है भाई, a constant function, is continuous। फंक्शन, दैट्स ऑल, इसकी आपकी ये थ्योरम प्रूव होगी। सिमिलरली वी कैन प्रूव, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, इसके बाद में ये क्वेश्चन जो कांस्टेंट फंक्शन वाला एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है और वैसे भी आपको बार बार यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं अभी अब की बार, मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन continuous function। In 11th class we have discussed about the modulus function। कैसा होता है आपका modulus function, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं fx is equal to modulus of x। इसको आपने ऐसे लिखा होगा fx is equal to minus x when x is less than 0 plus x when x is greater than or equal to 0। हमने इसका ग्राफ भी डिस्कस किया था 11th क्लास में भी। ये V शेप में ग्राफ आता है लाइक दिस। इट मींस आप x की वैल्यू नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। इट मींस fx is said to be fx is equal to modulus x। x is either negative or positive, y is always positive।
y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। करना भाई मैथमेटिकली तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्राफिकली सॉरी, ग्राफिकली तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने रिप्रेजेंट कर दिया, डोमेन इसका कुछ भी रखें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कहीं भी ग्राफ आपका ये है, ये आप ऐसे जाता है ग्राफ आपका, इट मीन्स वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। नाउ मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी? डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर उसी तरह से लेट a belongs to R, it means a is any real number, a कोई भी रियल नंबर है, यहाँ से कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। वही 3 पॉइंट्स आपको फिर चेक करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ए क्या होगा? चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, क्या आएगा? एफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, यानी a आएगा। एफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, ये a रहेगा। तब क्या आएगा भाई? सेकेंड पॉइंट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। इस पर आप कई सारे पॉइंट्स पर विचार करें। a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर अलग से बता देता हूँ। When a is negative, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, सपोज करें a की वैल्यू माइनस b है, भाई a की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो a को हमने सपोज कर लिया माइनस b, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? f माइनस b माइनस h, f माइनस b प्लस h, मॉडुलस ऑफ माइनस b प्लस h, ये क्या है? ये भी b प्लस h है, राइट? तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आएगी? मॉडुलस ऑफ लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस h, क्या आएगा? रखो आप h की वैल्यू, h इज इक्वल टू क्या है? s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0 तो क्या होगा? a माइनस 0, ये भी a है, चाहे a की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉडुलस से आया तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर एक केस आपने क्या था? a लेस देन 0। अगर आप a ग्रेटर देन 0 करें, सपोज करें a की वैल्यू b है, तब भी वही पॉजिटिव है तो सिंपल केस है, पॉजिटिव में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। आप सीधे लिमिट चेक करें पहले से, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू b, x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0। फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन इज डिफाइंड दिस fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, x की जगह आपका क्या है? a प्लस h है, तो क्या रखेंगे? मॉडुलस ऑफ a प्लस h, a प्लस 0। देखना तीनों इक्वल है क्या भाई? सिंस f a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit, therefore fx is continuous। इस तरह के थ्योरम्स आपकी कई सारी हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, cosine function is continuous in its domain, tangent, cotangent, secant and cosecant function is also continuous in its domain। ध्यान रखिए उनके डोमेन में कंटिन्यूअस है। टेंजेंट फंक्शन का ध्यान से, ग्राफ को ध्यान से पढ़ना, बिकॉज tan x is not defined at x is equal to pi by 2। अगर आप x is equal to pi by 2 पर चेक करेंगे tan x की कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो fx is continuous at tan x is equal to fx is equal to tan x, यानी tangent function is continuous in its domain। Now you have to discuss, you have to study the continuity of special functions, for example sin, cos, tan, log, logarithmic function, आपका जो है ये exponential function,
जितने भी इस टाइप के फंक्शंस हैं आपको थ्योरम्स पढ़नी है। कोई भी डाउट हो आपको तो मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सबके पास में है, कोई भी आप मैसेज करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।